ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಿಂದ 16 ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಣದೂರು ವೈಶಾಲನಗರದ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ಧಮ್ಮಾನಂದ ಮಹಾತೇರು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ವೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಬರೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬೌದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಮ್ಮ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈಗ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜರುಗಿದ್ದು ಅದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ನೀಡಿದ ಧಮ್ಮ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಧಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಧಮ್ಮ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಧಮ್ಮ ಇದು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧಮ್ಮ ಇದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಆಚರಣೆ ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಶಾಂತಿಯ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಮನುವಾದಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಕೇವಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಧಮ್ಮದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಎಳೆದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತೇರನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿನಃ ಹಿಂದೆ ಎಳೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ್ ಅವರು ಧಮ್ಮ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೈಸೂರಿನ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಿರಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವೈಜನಾಥ ಜ್ಯೋತಿ, ಡಿಯುಡಿಸಿ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಲಭೀಮ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸುದಾನಿ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿಠ್ಠಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ, ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಚಲುವ, ಬಿಎಸ್ವೈ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸದಾಫಲೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ಮಹಾಸಭಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬೆಲ್ದಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಂಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸದಾಫಲೆ, ಮಂಜುಳಾ ಬಾವಿದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಡಿಗೇರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಧನರಾಜ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. ಈ ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ವೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೀದರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರೆಗೂ ಅಲಂಕೃತ ಸಾರೋಟಿನ ಮೂಲಕ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು. सभी साइड हो जाओ. बिल्कुल चलो दयमाಡಿ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಅಲ್ತಾನಾರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ हो जाओ. ಅಲ್ತಾನಾರ ಸೈನಿಕರು
ಮೇಡಮ್ ಆಶಿಸುತ್ತ ಬಯಸಿದೆಯಲ್ಲ ಜನಹಿತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಹೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಜಯ ಹೇ ಲಿಂಗದ ತಾರತಮ್ಯ ಬರದ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ನಿನ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ ಗಡ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತದ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಭಾರತದ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಜಯ ಹೇ ಶತಮಾನದ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ಕಳಚಿದ ಬಲಬೀಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಶತಶತಮ संविधान का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। इस धम्म मंच पर आसीन पूज्य भंते जी को वंदन करता हूं। धम्म मंच पर बैठे हुए पूरे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी माने पदाधिकारी, समय का अभाव है, समता सैनिक दल के जवान, ऑफिसर्स जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आए हुए मेरे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी और भाई और बहनों, अच्छा लगा आपसे बात करते समय, लेकिन समय का अभाव है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बीदर ब्रांच के वजह से जिसमें भंते जी अभी धम्मदेशना देंगे,
और धम्म के बारे में प्रबोधन का काम होगा। ये डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से लग के है, जो महाराष्ट्र बाबा साहब की क्रांति की भूमि हम समझते हैं। इसके लिए जो महाराष्ट्र में बनता है, महाराष्ट्र में जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कार्यक्रम चलता है, उसी तरह के कार्यक्रम ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर चलते हैं। मुझे बधाई देता हूं इसके लिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमें धम्म दिया है। बड़े सोच के बाबा साहब ने यह धम्म दिया है, जिसके लिए बाबा साहब ने 21 साल अपनी सभी धर्मों के परीक्षण करने के बाद इस देश में धम्म क्रांति बाबा साहब ने की, जो 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि से। आज मुझे बताने में अच्छा लग रहा है कि यह धम्म क्रांति हम लोग ने महाराष्ट्र में सीमित नहीं रखी, तो देश के आज 22 स्टेट में यह भारतीय बौद्ध महासभा धम्म का प्रचार और प्रसार कर रही है। जो बाबा साहब अंबेडकर ने ट्रस्ट डीड में, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ट्रस्ट डीड है, उसमें लिखा हुआ है कि आने वाले समय में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया धम्म का कारवा पूरे देश में फैलाई गई। आज 60 साल के बाद हम लोग का प्रयास रहा है कि यह धम्म भगवान गौतम बुद्ध का दिया हुआ धम्म, जो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे 18 बुद्धिस्ट राष्ट्र इस दुनिया में है, और धम्म हम लोग ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज के लोगों को देने का हम लोग ने प्रयास किया। लोगों को धम्म दीक्षा देने के बाद इस प्रकार के धार्मिक प्रयोजन के बाद जो सामने शिविर है, महिला प्रशिक्षण शिविर है, उसके हम लोगों को धम्म बताने की बात करते हैं, सिखाने की बात करते हैं, क्योंकि बौद्ध धम्म आचरण की बात है भाई। मुंह से हम लोग बौद्ध बन गए, रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में हम लोग बौद्ध बन गए। इससे ज्यादा मैं महत्व देता हूं आचरण में कितना बौद्ध धर्म है। आचरण से लोगों को बताना चाहिए, दूसरे लोग समझना चाहिए हम बौद्ध है करके। हमारे वाणी से, हमारे से एक्सप्रेशन से, हमारे आचरण से हम लोग बौद्ध है, दूसरे को समझना चाहिए। एक बौद्ध संस्कृति बनाने की हमारी कोशिश है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की। जिस तरह दुनिया की दूसरी संस्कृति है, यहां माइनॉरिटीज की है, मुस्लिमों की है, दूसरों की है, उस तरह हमारे को बुद्धिस्ट संस्कृति, बुद्धिस्ट विचार यहां देश में रोजाना जरूरी समझता हूं। और इसी कारण अब पूरे प्रदेश में, फिर वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हुए,
झारखंड इस प्रकार के प्रोग्राम के आयोजन किया जाता है। आने वाले 23 तारीख को मैं झांसी के उत्तर प्रदेश में हूं। 22 तारीख को अगले संडे में मैं बीदर के हुपला में हूं और यहां से 23 तारीख के दोपहर तक मैं झांसी में पहुंच जाऊंगा, जहां बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आयोजन किया हुआ है, धम्म सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है। करीब करीब 50,000 की ताकत से वहां लोग जमेंगे। कुछ हमारे लोग जमेंगे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बुद्धिस्ट लोग जमेंगे, मौर्य समाज के लोग जमेंगे, कुशवाहा समाज के लोग जमेंगे। क्योंकि यह धम्म क्रांति हमें एक समाज के लिए सीमित नहीं रखी। जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनके तक ये धम्म क्रांति हम लेके जाने का हमारा प्रयास है, यशस्वी हो रहा है। यहां आने के पहले मैं हफ्ता भर पहले मैं गुजरात में था। एक समय ऐसा लग रहा था गुजरात में बाबा साहब की मूवमेंट नहीं चलेगी, क्योंकि लोग वहां तैयार नहीं थे वहां। लेकिन गुजरात में आज बौद्ध धम्म बड़ा जोर से फैल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। जो बाबा साहब ने हमें आखिरी की क्रांति की, बाबा साहब के जीवनी की जो धम्म क्रांति है, वही हमारे को न्याय देगी, ये लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि न्यू जनरेशन अभी पढ़े लिखे है, अंधविश्वास, पाखंडवाद, इसमें कोई भला नहीं है, मैं समझता हूं। और ये लोगों को समझ में आ गई, इसीलिए लोग आज बुद्धिज्म में आने की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ये सभी आसान नहीं है हमारे लिए। यहां के लोगों ने दिखा दिया, जो बाबा साहब के विचारसरणी के खिलाफ है, जो बाबा साहब जिंदा थे उन्होंने विरोध किया था बाबा साहब को, बाबा साहब के विचारसरणी को, बाबा साहब के क्रांति को। यही लोग हैं आज सत्ते में बैठे हुए हैं, केंद्र में है, स्टेट में है। इसीलिए मैंने बताया कि यह आसान नहीं है। बाबा साहब की क्रांति दबाने की कोशिश चल रही है इस देश में। बाबा साहब की क्रांति दबा गई तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। और नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब के फॉलोअर्स, बाबा साहब के अनुयायी, जो देश में करोड़ों की संख्या में है, वो आगे नहीं जाए। ये उनकी सोच है कि उन्होंने देखा कि बाबा साहब के दिए हुए रास्ते से चल रहे हैं। धम्म ये अपनाए रहे, बौद्ध धम्म, इसके लिए इनका आसान रास्ता हो गया है। इसलिए कई प्रकार की आज कठिनाई हमारे सामने है, वो भी सोचना पड़ेगा। संविधान में राइट टू रिलीजन बाबा साहब ने लिखा हुआ है, दैट इज अ फंडामेंटल राइट। सेक्शन 25 है, कोई भी अपना
धम्म चूस कर सकता है, उपासना कर सकता है। लेकिन आज देश में कई स्टेट है, कन्वर्जन का प्रोग्राम हुआ तो डीएम की परमिशन लेनी पड़ती है, पुलिस डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, जो अपने संविधान के खिलाफ है। इस प्रकार की दिक्कतें हमारे सामने हैं। बाबा साहब ने बताया था एजुकेटेड बनो, शिक्षित बनो। समाज वही ध्यान रखते हुए आज समाज में एजुकेशन का प्रमाण ज्यादा हो गया। एजुकेशन के माध्यम से बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया था। सेक्शन 340, 341 हमें रिजर्वेशन मिल गया। एक बाजू में एजुकेशन समाज के साथ था, दूसरे बाजू में रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में। हम आगे निकल गए, ऑफिसर बन गए। अच्छी तनख्वाह मिल गई, आर्थिक स्तर हमारा बढ़ गया, सामाजिक स्तर बढ़ गया। दूसरे समाज के साथ हम लोग कंपटीशन में आ गए। ये देखते हुए उन्होंने सरकारी कंपनी आज बेचने को शुरुआत कर दी। कल बोल देंगे भाई सरकारी कंपनियां नहीं, देयर इज नो रिजर्वेशन एट ऑल। इस तरह की कूटनीति आज देश में चल रही है। यह हमें सोचना पड़ेगा। बाबा साहब ने तो उस जमाने में सोच के रखा था, लिख के रखा है। बाबा साहब कहते हैं रिवॉल्यूशन इन एंटी रिवॉल्यूशन इन इंडिया। बाबा साहब कहते हैं कि रिवॉल्यूशन होता है, उसके एंटी रिवॉल्यूशन, उसको दबाने का लिए प्रयास होता है। मैं समझ रहा हूं 2014 से प्रयास चल रहा एंटी रिवॉल्यूशन का, इस समाज को दबाने का। बाबा साहब इधर ही नहीं रुक गए, तो बाबा साहब ने उस पर सॉल्यूशन बताया है। हमारे लिए चुनौती है भाई, संगठित बन जाओ धम्म के माध्यम से। ये जो भी हमारे समस्या आने वाले समय में है, वो समस्या हम लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारें हैं, जो बाबा साहब के संविधान को छेड़छाड़ करती है। संविधान पर यह देश नहीं चल रहा है। संविधान के बचाने के लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि संविधान है, इसके लिए हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़ सकते हैं। लेकिन बताना चाहता, संविधान को ये बाबा साहब ने हमारे लिए नहीं दिया है। बाबा साहब के अनुयायी के लिए नहीं है, ये पूरे देशवासियों के लिए है संविधान। ये समझना पड़ेगा। और उन्होंने भी ये संविधान के बचाव की रैली में लाना पड़ेगा। 2024 में मैं देख रहा था, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा था पूरे देश में, मैं कई राज्यों का उस समय दौरा किया। संविधान बचाने की रैली में मैंने संबोधित किया। संविधान बचाने का जब ऐलान हो गया विरोधी पार्टियों से,
जिन्होंने इंडिया गठबंधन की निर्माण की थी और लोगों ने उनको अच्छे तरह से वोटिंग दे दी, क्योंकि आने वाले समय में यह संविधान बचा देंगे। इसीलिए दिल्ली के एक मीटिंग में मैंने बताया, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद अंबेडकर भवन दिल्ली रानी झांसी रोड पर भारतीय बौद्ध महासभा का प्रोग्राम था। उसी में कई पत्रकार मित्र मेरे सामने बैठे हुए थे। बताया, इंडिया गठबंधन का ये विजय नहीं मैं समझता हूं, ये संविधान का विजय है, बाबा साहब के अंबेडकर के अनुयायी का विजय है। ये पहला सोच लो। करोड़ों लोग रास्ते पर आ गए, उन्होंने इंडिया गठबंधन को जोर से समर्थन दे दिया। ये भी सोचना पड़ेगा। 75 साल आज हो गए जो कांग्रेस गवर्नमेंट मैक्सिमम पीरियड कांग्रेस सत्ते पर थी, बाबा साहब का गौरव करती, संविधान का गौरव करती। जो आज सत्ते में बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो सत्ते वाले विचारधारा उधर तक पहुंचती नहीं थी। ये भी सोचना पड़ेगा। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा आने वाले समय में जो बाबा साहब ने आज संगठन दिए हुए हैं, रिपब्लिकन पार्टी, समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यह संगठन हमें आगे चल के चलाना पड़ेगा। कोई दूसरा आएगा और हमारे लिए कोई लड़ेगा, ये मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई पार्टी आएगी और हमारे लिए लड़ेगी। एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2 महीना पहले मैं आपके स्टेट के बाजू में आंध्र प्रदेश में था। विजयवाड़ा से मैं गुंटूर गया और बादगी समाज का अधिवेशन में मैं संबोधित कर रहा था। सब्जेक्ट था उसमें जो 7 जजमेंट आया, 7 जजेस का जजमेंट आया है, रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, जिसमें बाइफर्केशन कर दी। दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी। बाबा साहब ने संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि रिजर्वेशन में एबीसीडी कर लो। लेकिन जो जजमेंट अभी आ गए, उस रैली को संबोधित, मादकी समाज के रैली को संबोधित करने के लिए गया था। उन्होंने निषेध कर दिया, भाई ऐसे रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन हमें नहीं चाहिए। मेरे सामने करीब करीब 3 लाख के लोग थे और उस समय हम लोगों ने कंडेम कर दिया, निषेध कर दिया। बताना यही चाहता हूं कि कई हमारे संगठन ने पूरे देश भर में इसका कंडेम किया, निषेध किया। आंध्र प्रदेश में नारा दिया कि यह पॉलिसी हम लोग नहीं चलने देंगे। तेलंगाना में, बाद में मैं तेलंगाना आया, हैदराबाद में आया। हैदराबाद में बताया कि हम लोग ये पॉलिसी नहीं चलने देंगे, हम लोग विरोध करेंगे। सोचने वाली बात है। जिस 2024 में हम लोग ने इंडिया गठबंधन को वोटिंग किया, जिसमें कांग्रेस इज अ मेजर पार्टी, कांग्रेस ने अनाउंसमेंट कर दिया कि तुम्हारे कर्नाटक में, जहां कांग्रेस का रूल है, तेलंगाना में जहां कांग्रेस का रूल है, वहां ये पॉलिसी हम लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इसीलिए मैंने बताता हूं कि आपके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि तुम्हारी लड़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी।
कोई बचाने वाला आज आने वाला नहीं है आने वाले समय में। इसलिए वो सोच हमें धम्म का फाउंडेशन बड़ा करना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगा, काफी संख्या से यहां भंते जी कर्नाटक में है। एक साथ भंते जी संगम और भारतीय बौद्ध महासभा और जो बाबा साहब के क्रांति से बेनिफिशियरीज है, लाभार्थी बोल सकते हैं, बेनिफिशियरीज बोल सकते हैं। मैं समझता हूं उन सभी की आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाबा साहब को कारवा को आगे लेके जाए। ये हमारी लड़ाई है, इस वक्त की लड़ाई है। ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी को क्या आंसर हम लोग करेंगे? जब आने वाली पीढ़ी आपको पूछेगी बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान हमारे से छीन लिया, बाबा साहब ने दिया हुआ शिक्षा का अधिकार छीन लिया, नौकरियां चल गई, आप क्या कर रहे थे? ये आने वाली पीढ़ी आपको पूछ सकती है। इसके लिए समय में हमें लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। मैं संदेश देके जा रहा हूं क्योंकि 7:45 की मेरी गाड़ी है। 7